a very important topic of thermodynamics, basic introduction to thermodynamics. So, as you know, as you are engineer, so before that we are going to deeply in the subject introduction to thermodynamics. So, first we have to know why you study this thermodynamics. What is the effect? What is the need of this thermodynamics? Why you study this? What are the different parameters inside the thermodynamics? So, today we are going to discuss about the introduction to thermodynamics. Topic is introduction to thermodynamics. So, why we study this? Why we study this thermodynamics? Every times we have to know as an engineer. So you have to first know why. So तो थर्मोडायनामिक्स पढुछे थर्मोडायनामिक्स काई दरकार कोन कामर आसी कोन पई कोन कोन बेसिक पैरामीटर ए भीतर अछि सेगुला प्रथम हमको जानिया पड़ो बिफोर गोइंग टू डिफरेंट अबाउट द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट वी टू व्हाई इट स्टडी सो थर्मोडायनामिक्स इज द बेसिक पार्ट्स दैट मींस वी कैन प्रोड्यूस हीट बाय द बर्निंग ऑफ fuel wood etc after the burning we can produce heat but this is a one type of energy that can be directly cannot be used. So how can you utilize this in the work form? So how can you convert into the work? How can we convert this heat into the work? So that is the main aim of the thermodynamics. That means how can you convert this heat into work in a efficient manner? Efficient manner means we put input. Heat is the input and we get maximum output. That the minimum input and we get maximum output, that is known as efficient manner. And then the effect of the different properties of the system. Okay? The thermodynamics is the branch. First we have to take I am going to say it is the branch of science which deals with the conversion of heat into what? In a efficient manner. In a efficient manner. Then it is the important factor. Then the effect of properties of the system. The three terms are very important in this definition. That is the branch of science which deals with the conversion of the heat into work in an efficient manner. Then the effect of properties and the system. As we know, efficient manner means if the minimum input, then how we get maximum output. That means केमिति हमें minimum input देकी maximum output पाई परिबा. This is known as efficient manner. Next, system. System means what do you mean system? Next, tell me what is system. So heat. System, we have to now discuss about system. What is system? What is the system? ये कौन? एटा काहे दरकार है? System. आमे जो heat टा अप्लाई करबा, गोटे जगह देबा दरकार, some specific area देबा दरकार. खाली हवा तो छाड़ देबा नहीं हवा का heat को तो some specific region दरकार, specific area दरकार, जोटा heat को utilize करबा. तो सही एरिया को सही जगह को जोटा में हीट को यूटिलाइज करिबा स्टडी करिबा से पर्टिकुलर प्लेस को दैट इज नोन एज सिस्टम. तो पर्टिकुलर एरिया इन व्हिच वी स्टडी इज कंसंट्रेटेड हम स्टडी पूरा एरिया आवर रहबो से पर्टिकुलर एरिया को बोला सिस्टम को आवा. तो ओके नेक्स्ट सिस्टम इज वन. नेक्स्ट वन इज सिस्टम. As we apply heat on the system, yes or no? As we apply heat, Q is equal to heat on the system. Now a point that tell the question develop inside our mind. Every system allow heat, or some systems that should not allow heat. That point of view, system is categorized as two types. तो every system को allow करो heat को ना किसी सिस्टम में जोड़ा अलाउ करिबो नहीं हीट को. तो सही क्वेश्चन को नहीं कि सिस्टम को टू टाइप रो कैटेगरीज करा गला. वन इज
One is open system. Two is closed system. So my dear student, say point of view, जो point of view, every system को allow करछि energy. Energy means heat. तो every system energy को allow करबो कि किछि mass को allow करबो. सही point of view हम इस system को दुटा भाग में विभक्त करला. गोटे है open system, another is closed system. तो वर्तमान हम जानिबा open system कोन. Open system. Open system. नाम में जना मुझे open means open पला तो ही allow ना कौन बोलो ये system दो system which allow to transmit both energy that means heat or some other energy also heat as well as mass से कौन बोलो allow बोलो open system कौन बोलो both allow बोलो कौन heat and mass okay so my dear student जो system both heat and mass বা energy के mass को both को allow करिवो that is known as open system okay the example of open system is turbine pump etc तो एगुडा कोन बोला ओपन सिस्टम दैट मींस देखो मास एंट्री होची टरबाइन रे yes or no टरबाइन रे पंप रे मास जाउची पानी जाउची पानी बाहरची पानी वाटर एंट्री होची वाटर एग्जिस्ट होची yes or मास बे होची हीट भी जाई करबो हीट आपण गरम करबा हीट आराम रे जाई भीतर को जाउची कि नहीं तो ए सिस्टम का बहुत को अलाउ करची हीट एज वेल एज मास दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम. Now I am going to discuss about the closed system. Closed system means it is fully closed. It is boundary almost closed. Closed means it does not allow to suppose we have to take an example. Boundary are closed. It can mass entry करिवो mass बाहर करिवो कि entry करिवो no never not possible that's why it does not allow to transmit mass allow करि परिबो नाही only केवल यदि allow करिवो heat को देई पाइबा yes or no heat दे करना एनर्जी दे करना ऑब्वियसली हीट का कौन होची भीतर कौन होची हीट एनर्जी का ट्रांसमिट होई इनसाइड दिस सिस्टम ओके इनसाइड दिस सिस्टम so these are two types of the system open system closed system among them there is another system जो सिस्टम रे कौन कहली हीट का मास को नहीं कंसीडर होची किंतु एमिति गोटे सिस्टम होची तो थर्ड वन कोची जे जोड़ा कि कौन सी जिंस को अलाउ करिवो नहीं कि बाहर को छाड़िवो नहीं कि विद्युत को आने में देबो नहीं आइदर से मास को अलाउ करिवो ना कि हीट को अलाउ करिवो सेटा कोन होची आइसोलेटेड सिस्टम थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम से पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ा डू नॉट अलाउ कौन सी जिंस को अलाउ करिवो नहीं सेटा आइसोलेटेड सिस्टम सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम जोड़ा दो पॉइंट डू नॉट allow mass and energy माने मास और एनर्जी को कौन सी जिंस को से अलाउ करिवो नहीं कि बाहर को छाड़िवो नहीं सेही सिस्टम को आइसोलेटेड कहा वाला ओके आ जोटा कोन ओनली मास को अलाउ करिवो नहीं किंतु एनर्जी को अलाउ करिवो सेटा कोन क्लोज सिस्टम कहा गला क्लोज सिस्टम एग्जांपल है कौन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम एग्जांपल कौन है एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम इज valve cylinder arrangement valve piston cylinder arrangement without valve जोटी valve नथिबो कोन जोटी valve नथिबो पिस्टन
सिस्टम कहला क्लोज सिस्टम कोडी ओनली एटी कोन हो एनर्जी केवल ट्रांसफर हो नो मास ओके दिस इज नोन एज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड कोन कहली आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट व्हिच डू नॉट अलाउ बोथ नाइदर से मास को लगो नॉट को से और हीट को लगो ओटा की हमरो यूनिवर्स रो एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट यस और नो तो कौन से एनर्जी को रिलीज करनी एनर्जी को रिसीव करनी तो से दूसरा कौन कहला हमरो आइसोलेटेड सिस्टम ओके नाउ नेक्स्ट टर्म इज सिस्टम नाम पढ़ले अपने थ्री टाइप सिस्टम वाला सिस्टम जाने देला वर्तमान पिला माने तो माइंड स्टूडेंट सिस्टम जाने सिस्टम कौन सिस्टम इज एनीथिंग फर्स्ट स्टडी आर कंसंट्रेटेड जो स्टडी करि बाटा जो स्टडी हम फोकस रहियो पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट हला सेठी हम सिस्टम कहला तो सिस्टम को बाहर जो जिनसडा कंसीडर एति को हम स्टडी करला एई सिस्टम रो बाउंड्री हला ओके सिस्टम एक्सटर्नल to anything of the system is known as surrounding सिस्टम रो बाहर जो रहला सराउंडिंग आउ सिस्टम रो जो लाइन ऑफ सेपरेशन सिस्टम इटा सिस्टम दिस इज सिस्टम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज सराउंडिंग द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री ओके तो जो लाइन ऑफ सेपरेशन को का मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करते जो लाइन है दैट इज नोन एज बाउंड्री okay this is all about system surrounding and boundary okay now create a question okay system तो हम जाने दे सिस्टम यार पर कि सिस्टम को डिफाइन केमि करना किछि जिंस दरकार बुझा भाई किछि पैरामीटर दरकार एसो न किछि सिस्टम को हमें जणे एटा सिस्टम ना एमिति अछि सिस्टम ना एई टाइप रो को सिस्टम ना एमिति जिंस को लेके तैयारी अछि या सिस्टम भीतर एमिति जिंस अछि कोन पैरामीटर अछि तो ताको डिफाइन करबे किछि पैरामीटर दरकार तेबे हमको सिस्टम को डिफाइन करि पाइबा तो कोन जो पैरामीटर द्वारा हम सिस्टम को डिफाइन करू छे जो पैरामीटर्स द्वारा हम सिस्टम को डिफाइन करू छे सही पैरामीटर कोन वाला प्रॉपर्टीज तो फास्ट लिख दिली एफिशिएंट मैनर हेतु दरकार एफिशिएंट हेतु दरकार तापर इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हला इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम तो ए प्रॉपर्टीज माने कोन व्हाट इज माय प्रॉपर्टी माने दोज पैरामीटर व्हिच इज नीडेड इन ऑर्डर टू डिफाइन अ सिस्टम को डिफाइन करा में हम प्रॉपर्टी को नीड करता और एग्जांपल प्रॉपर्टीज में कोन एग्जांपल होला जेमिति प्रेशर असला सिस्टम भीतर प्रेशर अछि पार्टिकुलर प्रेशर भी अछि किछि वॉल्यूम अछि टेंपरेचर अछि एटसेट्रा एई पैरामीटर कोन कहला सिस्टम रो प्रॉपर्टीज वाला एई पार्टिकुलर जिंस को लेकी हमें सिस्टम को डिफाइन करथाउ आ सेही पैरामीटर को कोन कहला प्रॉपर्टीज वाला ओके तो देयर इज अ क्वेश्चन डेवलप इनसाइड योर माइंड द all properties of the system will be depend upon the size of the system or mass of the system देखो कैटेगरी देखाला किछि सिस्टम किछि प्रॉपर्टीज कोन अछि किछि साइज पे डिपेंड करछि किछि मास पे डिपेंड करछि तो सही पॉइंट ऑफ व्यू को पॉइंट ऑफ व्यू किछि प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड किछि साइज पे डिपेंड करछि सही पॉइंट ऑफ व्यू हमें कोन करले प्रॉपर्टीज को टू कैटेगराइज करा गला वन इज extensive property okay second one is intensive property okay तो टू कैटेगरी में डिवाइड कराला काकू प्रॉपर्टीज को गोटेला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और गोटेला इंटेंसिव प्रॉपर्टी वर्तमान हमें जानिबा कोन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोन ओके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव properties okay so extensive property those property ये सिस्टम रो प्रॉपर्टी कोई दिन फास्ट कोन सिस्टम रो सब पैरामीटर बड़ा तो
तो सिस्टम रो सेही प्रॉपर्टी जो सिस्टम जो प्रॉपर्टी गुडा कोन डिपेंड ऑफ द साइज एंड डिपेंड ऑफ द मास हला जो प्रॉपर्टी गुडा डिपेंड करबे का ऊपर साइज ऑफ द सिस्टम और साइज ऑफ द मास एग्जांपल जेमिति हम वॉल्यूम लगा ओके वॉल्यूम ना कोन साइज पे डिपेंड करो बिकॉज़ सम पार्टिकुलर वॉल्यूम अछि कोन सपोज और सिस्टम रे जहां वॉल्यूम अछि v ओरिजिनल वॉल्यूम अछि v अछि ओके ताकू डिवाइड कर देली तो कोन हो यार वॉल्यूम कोन हाफ डिवाइड कर कोन हो v/2 हो जिवो यार कोन हो v/2 हो जिवो तो कोन प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम रे चेंज होला कि साइज चेंज होला आंसर से भी चेंज होला से डिपेंड करला का ऊपर साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करला कि नहीं तनको सही प्रकार सिस्टम को प्रॉपर्टीज को जे सिस्टम रो साइज पे डिपेंड करूची सही प्रकार प्रॉपर्टी को बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक वॉल्यूम एगो साइज पे डिपेंड करला किछि यदि मास पे डिपेंड करला मास माने एवरी एनर्जी दा फॉर्म ऑफ कौन मास जते बॉडी हो जिवो एनर्जी बॉडी हो जिवो यस नो एवरी एनर्जी शुड कंटेन मास तो एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी शुड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी एगुडा सब कोन कहू हम मास सब सेठी एसोसिएटेड अछि सेही खेती पय ताको बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा गला ओके एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एनर्जी इज एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट second one is going to discuss about intensive property. What is intensive property? Intensive property. Okay. Intensive. So extensive कौन होगा? Extensive is depend upon mass or size, but your opposite. That means intensive property do not depend upon the mass or size. साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ सिस्टम दिस इज सिस्टम ओके देयर इज इनसाइड टेंपरेचर T इट ओरिजिनल T था ओके प्रथम कौन था T था इफ यू डिवाइड इनटू टू सेक्शन दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ आफ्टर डिवाइड देयर इज चेंज इन टेंपरेचर नो बिकॉज़ this is also T temperature after it is also T temperature the effect of size depend upon the effect of size no so that's why it is called intensive property तो intensive property कोगुडा जो गुडा की size पे डिपेंड करिवनी size बढ़िले भी कि कमिले भी they do not depend upon the size or mass those property is known as intensive property for example temperature pressure density these are known as the intensive property okay my dear student understand about intensive property and extensive property okay next topic going to next topic my dear student suppose we are taking a system piston cylinder arrangement okay this is a piston cylinder arrangement okay piston cylinder arrangement this is known as system okay if piston is moving condition so we cannot focus or we cannot determine what is the particular position what is the particular property what is the particular condition of the system so system যদি particular study করিবা তাহলে তার must be ଗୋଟେ equilibrium condition হবা দরকার equilibrium condition হেবা দরকার তেবে যে আমি কোন জানি করবা সে সিস্টেম উপরে স্টাডি করি পারবা সিস্টেম को স্টাডি করিবা ପାଇଁ কোন দরকার সিস্টেম উপরে কোন equilibrium condition হবা দরকার তো জানিবা কেমতি যে আমার সিস্টেম না কোন আছে equilibrium আছে whether the system is an equilibrium condition how can you determine the system is on the equilibrium condition we can know by the help of three conditions if these three conditions is satisfied then it is system is in equilibrium condition okay that is these three conditions are first one is mechanical equilibrium okay second one is thermal equilibrium third one is chemical equilibrium okay one by one we will discuss about so कोन हला हम तीन जन जानि पहला दरकार ला में ना सिस्टम को जानिया में कोन इक्विलिब्रियम अछि कि नै बाय द थ्री कंडीशन को सैटिस्फाई करबो तेबे जाय के
सिस्टम ना इक्विलिब्रियम हेबा दरकार इक्विलिब्रियम काहे हेबा दरकार बिकॉज़ हम स्टडी करबा केते बेले जेते बेले स्टेबल कंडीशन दिबा बा इक्विलिब्रियम कंडीशन दिबो तेते बेले हम सिस्टम ऊपर किछि स्टडी करि पारिबा यदि पिस्टन मूवमेंट को हम कहि करबा कि पार्टिकुलर केते टेम्परेचर अछि पार्टिकुलर केते प्रेशर अछि तो कोन हेबा दरकार पार्टिकुलर से स्टेबल हेबा दरकार आ से स्टेबल टा को इक्विलिब्रियम हेबा पई कोन तीनटा जिंस हेबा दरकार कोन खाली पिस्टन मूव हेले केटा कोन आबा सैटिस्फाई करबा कि इक्विलिब्रियम नै सेठी जि टेम्परेचर चेंज होबो तारे कोन पाइबा हला इक्विलिब्रियम कि ना तो तीनटा जिंस हेबा दरकार कोन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस there is no any unbalanced force unbalanced force means पूरा स्टेबल पिस्टन मूवमेंट नहीं कौन सी साइड कौन सी अनबैलेंस फोर्स नथिबो दैट मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स समेशन ऑफ रोटेशनल फोर्स एवरी शुड बी इन कौन इक्विलिब्रियम जीरो दैट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेकंड वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम मींस the temperature inside this system at every point should be equal that means every point should be equal if there is T temperature here also T temperature here also T temperature every point every molecule contain T temperature there is no change no any variation of T temperature this is known as thermal equilibrium माने सब पॉइंट रे सेम टेम्परेचर थिबो इनसाइड ए सिस्टम गाने हटा कोन कहबा थर्मल इक्विलिब्रियम के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कोन कहतिली जोटा कि नो अनबैलेंस करथबो से पूरा शुड बी पूरा इक्विलिब्रियम हो लास्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम मींस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन occurs inside the system केमिकल रिएक्शन माने एक जदी जानछ हम केमिकल रिएक्शन में कोन हुए हीट प्रोड्यूस ले कोन टेम्परेचर बार टेम्परेचर बढ़े प्रेशर भी बढ़ी पारे ओके तो सेही कोन हला स्टेबल कहि परबा कि नहीं तरण करी तीनटा जिंस सैटिस्फाई होबा दरकार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम ए तीनटा को सैटिस्फाई करला तीनटा जिंस इक्विलिब्रियम रहला देन दिस सिस्टम इज नोन एज equilibrium my student understand this is known as equilibrium condition it is satisfy equilibrium condition okay now go to different topic of the next topic that is a single state means suppose a system particular to one condition में क्या है P1 है प्रेशर V1 है वॉल्यूम T1 है T तो कोन हो जते बेले को सिंगल स्टेट को सिस्टम इन वर्क नहीं कर पाबो तो हमर एम कोन छ फॉर्मूला हीट दबा आ कोन पाइबा आउटपुट रे वर्क पाइबा कि नहीं वर्क पाइबा किंतु को सिंगल स्टेट कोन देई परबो ताको कोन बात जाले से वॉल्यूम चेंज होगा तो कि प्रेशर चेंज होगा तो कि टेम्परेचर भी चेंज होगा दरकार आ खाली जो सिंगल स्टेट को वर्क कर दबो नॉट पॉसिबल हीट दबा मान तो समथिंग चेंज होगा माइनस that means temperature भी चेंज हो पारे प्रेशर भी चेंज हो पारे वॉल्यूम भी चेंज हो पारे तो ए जो चेंज हो पूरा स्टेट रो आउट स्टेट रो चेंज हो पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम सपोज P1 V1 T1 से को स्टेट को देला P2 V2 T2 को चेंज होला ओके तो कोन होला गोटे स्टेट रो आउट इक्विलिब्रियम स्टेट को एटा सब इक्विलिब्रियम कंडीशन अछि गुटे इक्विलिब्रियम स्टेट रो आ गुटे इक्विलिब्रियम स्टेट रो चेंज होउची गुटे सिस्टम ना थर्मोडायनामिक सिस्टम दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस ओके बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस तो कोन प्रोसेस गुटे इक्विलिब्रियम स्टेट रो आ गुटे इक्विलिब्रियम स्टेट को कोन होची चेंज होउची दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को थर्मोडायनामिक उदाहरण टाइप को छे थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोन थर्मो dynamic process okay thermodynamic process are कौन one is isothermal process sorry I have to change the marker okay isothermal process second one is isobaric process third one is isochoric process
fourth one is adiabatic process. Adiabatic process. Okay. Fifth one is polytropic process. Polytropic process. Let's discuss one by one in short term. That is isothermal. Isothermal means thermal means temperature refer करता है. कौन temperature को refer करूँगी? That means iso means should be same. That never change. Okay. Isothermal process in which the temperature remain constant. जो process है temperature constant होगी, से process को कौन कहला? से thermal process को isothermal process कहला. ताकि जानिया पाए देखो जी प्रोसेस होची थर्मल रे पता कोला थर्मल माने टेंपरेचर का गरम टा कोटा कोजे तो टेंपरेचर जो कांस्टेंट ला दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक बार किस काइंड है प्रेशर काइंड है तो आइसोबारिक मींस प्रेशर जो कांस्टेंट होतो प्रेशर शुड बी कांस्टेंट जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस रे दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस. ओके easy to remember tricks. Okay. Isobaric that means जो भी वॉल्यूम कांस्टेंट होतो सेटाला आइसोबैरिक प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक मींस जो सिस्टम हीट को ट्रांसमिट करिवो नै नाइदर फ्रॉम इनटू और इनटू टू फ्रॉम. ओके ना भितर बाहर को दवा पे नेबो ना बाहर भितर को अलाउ करिवो से कोनसी जिंस को हीट को अलाउ करिवो नै से थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोन वाला एडियाबैटिक प्रोसेस मींस do not change of okay heat को allow करिवो नहीं do not allow शब्द में लिखला कौन जी do not allow to heat transmit okay last topic is polytropic process माने ए चारिटा प्रोसेस छाडी दै साला पर जहां रेस्ट रहला बाकी सब polytropic process कहा गला. Okay, my dear student, this is all about my introduction to thermodynamics. That means system, boundaries, some other things. But our thermodynamics main object is how to convert the heat into work in an efficient manner. Then effect of the properties of this system. Okay, thank you, my dear student. Thank you, my dear student. So it is really allowed that you should be maintain guideline. Mania by your COVID guideline. It is my suggestion for you, and I also obey this rule. Suggestions that wear mask and use sanitizer, so you protect from yourself from the COVID guideline you follow. Okay.